Now today we will continue with some of the preliminary concepts and then we'll start with the reading of Indian Evidence Act. So I want to just talk about briefly about a concept of two witness theory. Now you remember section 134 of the Indian Evidence Act telling you that no amount of witnesses are necessary to prove a particular offense, right? Because it is the quality of evidence, not the quantity of the evidence, that is judged by the court. So, with regard to two witness theory, the apex court in the case of Binay Kumar Singh versus State of Bihar held that there is no rule of evidence that no conviction can be based unless a certain minimum number of witnesses has been identified as a particular accused and as a member of unlawful assembly. It is held that it is axiomatic that evidence is not to be counted but only weighed, and it is not the quantity of evidence but the quality of evidence that matters. It was held that even a testimony of a single witness, if wholly reliable, is sufficient to establish the identification of the accused as a member of unlawful assembly. Then it is held all the same when the size of unlawful assembly is quite large and many persons would have witnessed the incident, it would be a prudent exercise to insist on at least two reliable witnesses to vouchsafe the identification of the accused as a participant in writing. So you should know that two witness theory is first of all not a rule of law. It is a rule of prudence, and it is only exercised in those scenarios where there is an instance of mammoth rioting. Mammoth rioting means large scale riots where the unlawful assembly, which is huge in number, actually commits a particular offense. Then in order for proper identification, as a rule of prudence, the courts ordinarily want that at least two witnesses should identify the accused person as a participant in the writing. Alright, but you should always, mention this rule as a rider that Evidence Act does not require it. Evidence Act says that even on the testimony of a single witness, if it is wholly reliable, if his testimony is wholly reliable, then that would be sufficient to establish the identification of the accused as the member of unlawful assembly, and the conviction could be based upon it. However, just as a rule of prudence, just as a rule of practice, court ordinarily insists that at least two reliable witnesses to be present in order to vouchsafe the identification of the accused as a participant in rioting. So this was the position of law that was held by the apex court in Binay Kumar Singh versus State of Bihar. Alright, now this judgment was right now approved in Duleshwar versus State of Madhya Pradesh, now Chhattisgarh, on 21st January 2020 by a 3 judges bench. So the law is continuing from that time till now, and you should know that two witness theory is primarily confined to the cases of mammoth rioting only. Okay, so I'll reiterate again just for the sake that there is no confusion in this matter. See, in evidence law, it is the quality of evidence that matter, not the quantity, and the testimony of a single witness may be sufficient to establish the identification of the accused as a member of unlawful assembly. But as a rule of prudence, when the size of assembly is quite large and many persons have witnessed the incident, and when a witness deposes in general terms, then in that situation it would be useful to adopt the test of consistency of more than one witness as to remove any lingering doubt about the identity of the accused as a member of assembly in question. However, even if adopting such test of consistency, what is to be looked for is the consistent account of the incident, and the requirement of consistency cannot be overstressed as if to search for the repetition of each and every name of the accused in each and every testimony. So in other words, the comprehension of overall evidence on record is the requisite, and mere counting of heads or mere recitation of names or omission of any name in the testimony of any particular witness will not be a decisive factor. Alright, so in such fact and circumstances, even the relevance of corroborating facts and factors like recovery of weapons or any other article correlated with the crime in question cannot be ignored. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए. ये पोजीशन ऑफ लॉ है
जो टू विटनेस थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जा रही है। तो इसमें आप रेलेवेंसी देखेंगे कि क्या क्या रिकवर हुआ, क्या वेपन्स रिकवर हुए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्यूज पर्सन। और टू विटनेस थ्योरी क्या करती है, बस इतने पॉइंट पे कंप्राइज रहती है कि ये देख सके कोर्ट कि जो अक्यूज्ड इन क्वेश्चन है या नंबर ऑफ द अक्यूज हु आर इन क्वेश्चन, और केस मैमथ राइटिंग का है, अनलॉफुल असेंबली, तो ऐसे केस में आइडेंटिफिकेशन के लिए कोर्ट एज अ रूल ऑफ प्रैक्टिस चाहता है कि एक से ज़्यादा विटनेसेस को आइडेंटिफाई करें। लेकिन कोर्ट ये भी इस बात को लेके अवेयर है कि अगर टेस्टिमनी किसी सिंगल विटनेस की इतनी अच्छी है, पूरी तरीके से रिलायबल है कि कोर्ट को उसकी टेस्टिमनी पे विश्वास हो जाए, तो कोर्ट सिंगल टेस्टिमनी पे भी कन्विक्ट कर सकता है अक्यूज्ड को। ठीक है, सो टू विटनेस थ्योरी इज ओनली अ रूल ऑफ प्रूडेंस, ये बात याद रखिएगा। एविडेंस एक्ट कहीं नहीं रिक्वायर करती है, ये एक प्रैक्टिस प्रोसीजर का रूल है जो कोर्ट्स ने बनाया है। ठीक है, ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, हाउ डू यू डिसाइड द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस। तो इस पे एक बड़ा ही सेटल्ड पोजीशन ऑफ लॉ मैं आपको बता देता हूँ कि क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस इज एक्सेप्टेड ऑन द ब्रॉड प्रोबेबिलिटीज ऑफ द केस। सो द टचस्टोन इज ब्रॉड प्रोबेबिलिटीज ऑफ द केस। ये बात याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है एग्जाम में एज इट इज़, एंड इट इज़ अ सेटल्ड लॉ एंड इट इज़ अ जनरल प्रिंसिपल। The credibility of the witness is not accepted merely because it is corroborated by the evidence of other witness, but credibility is to be tested on the touchstone of broad probabilities of the case. ठीक है, तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट वी कम टू ब्लड टेस्ट एंड डीएनए एविडेंस। शॉर्ट में बताता जाता हूँ कि क्या क्या प्रिंसिपल हैं ब्लड टेस्ट के। सो इन गौतम कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अनदर, द एपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट कोर्ट्स इन इंडिया कैन नॉट ऑर्डर blood test as a matter of course. Secondly, wherever applications are made for such prayers in order to have a roving inquiry, the prayer for blood test cannot be entertained. Third, there must be a strong prima facie case, very important. There must be a strong prima facie case in that the husband must establish non-access in order to dispel the presumption arising under section 112 of the Indian Evidence Act. Fourth is, the court must carefully examine as to what would be the consequence of ordering the blood test, whether it would have the effect of branding the child as a bastard and the mother as an unchaste woman. And fifth is, no one can be compelled to give sample of blood for analysis. Now this position of law you need to remember, because Gautam Kundu versus State of West Bengal is a very popular judgment. You will always find that after an year or two, the examiner will repeat the question which relates to this topic. ठीक है, ब्लड टेस्ट पे जब भी सवाल आएगा एविडेंस एक्ट के क्वेश्चन पेपर में, यू हैव टू मेंशन दिस. And if you are a practicing lawyer, then you need to be aware about these scenarios. And if you are solving a case, then without knowing these principles, you cannot solve a case. ठीक है, अगर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है. अब ये जो ब्लड टेस्ट वाला मैंने भी आपको जजमेंट बताया ना, ये ज़्यादातर सेक्शन 112 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट के कंटेक्स्ट में पूछा जाता है. सेक्शन 112 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है? वो कहता है बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी. उसमें ये है कि इफ इट इज़ प्रूव्ड that any person was born during the continuance of a valid marriage between his mother and any man, or within 280 days after its dissolution, the mother remaining unmarried, then that would be conclusive proof that he is the legitimate son of that man, unless it can be shown that the parties to the marriage had no access to each other at the time when they could have been begotten. तो यहाँ पे नॉन एक्सेस को छोड़ के कोई भी एक्सेप्शन नहीं है. जो लेजिस्लेचर है उसने कंक्लूसिव प्रूफ माना है. और कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है वो सेक्शन 4 बताता है. कंक्लूसिव प्रूफ सिंपली ये होता है कि व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय द एक्ट टू बी द कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, द कोर्ट शैल ऑन प्रूफ ऑफ वन फैक्ट रिगार्ड द अदर एज प्रूव्ड एंड शैल नॉट अलाउ द एविडेंस गिवन फॉर द पर्पस ऑफ डिसप्रूविंग इट. तो इसका मतलब कि अगर एक्ट ने कभी बोल दिया कि ये चीज़ कंक्लूसिव प्रूफ हो जाती है तो आप उसे डिसप्रूव नहीं कर सकते. मतलब आप उसको गलत साबित करने के लिए एविडेंस नहीं दे सकते, ये मतलब है. तो अगर ये दिख गया कि शादी के बाद इफ़ अ सन इज़ बॉर्न और अ डॉटर इज़ बॉर्न, तो कोर्ट मान लेगा एज ए कंक्लूसिव प्रूफ कि दैट सन और डॉटर इज़ द लेजिटिमेट सन ऑफ डॉटर ऑफ दैट मैन. ठीक है.
और इसीलिए जितने भी अग्रीव्ड हस्बैंड्स होते हैं वो ज़्यादातर कोर्ट के पास जाते हैं ब्लड टेस्ट या डीएनए सैंपल एनालिसिस के लिए, जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बनाई थी गौतम कुंडू की ब्लड टेस्ट को लेके, फिर बनारसी दास वर्सेस टीकू दत्ता डीएनए को लेके, भवानी प्रसाद जेना वर्सेस उड़ीसा स्टेट कमीशन ऑफ वुमेन वो भी डीएनए को लेके थी, और रिसेंटली है नंदलाल वासुदेव बड़वैक वर्सेस लता नंदलाल बड़वैक विच वॉज डिसाइडेड ऑन 6 जनवरी 2014। तो अभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ डीएनए टेस्ट को लेके विच इज़ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्शन 112 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो डीएनए टेस्ट है ना, इट इज़ नॉट जस्ट कन्फाइंड टू डिटरमाइनिंग द लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड, ये क्राइम्स को प्रूव करने के लिए भी यूज़ होता है। तो ध्यान रखिए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में और ख़ास तौर से सीआरपीसी में भी देयर आर प्रोविजंस फॉर कलेक्टिंग द सैम्पल्स, डीएनए एविडेंस एंड अदर थिंग्स in order to establish evidence either for or against the accused. That depends on the circumstances. लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सेक्शन 112 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट की, ठीक है। अभी मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ, फिर मैं कुछ जजमेंट्स आपको ऐसे बताऊँगा जहाँ पे जो डीएनए एविडेंस है इट वाज यूज्ड टू प्रूव द ऑफेंस ऑफ रेप एंड इट वाज यूज्ड टू प्रूव द ऑफेंस ऑफ मर्डर एसेट्रा, ठीक है, जिससे आपको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हो। देखिए आपको ज़्यादातर ये बताया जाता है कि डीएनए सैंपल इन कंटेक्स्ट ऑफ सेक्शन 112, बट रियलिटी और प्रैक्टिकलिटी में वो वहाँ तक कन्फाइंड नहीं है, उसके एम्बिट्स उससे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। सो इन ऑर्डर फॉर यू टू हैव अ जनरल अवेयरनेस कि ओके डीएनए एविडेंस यहाँ तक नहीं, इससे ज़्यादा चीज़ों में यूज़ होता है, दैट इज़ वाई आई बी टेलिंग यू दैट। पर एग्ज़ाम में ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में जब एविडेंस एक्ट में जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ज़्यादातर आपको सेक्शन 112 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट के कंटेक्स्ट में पूछा जाएगा। तो एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए आपको सिचुएशन अलग रखनी है, ठीक है। सो नेक्स्ट आई कम टू बनारसी दास वर्सेस टीकू दत्ता। इट वॉज रिपोर्टेड इन 2005 वॉल्यूम नंबर 4 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 449, एंड इन दिस केस इन पैराग्राफ 13 विच इज़ रेलिवेंट फॉर द पर्पज़, I'll just quote it, what the Supreme Court said in paragraph 13. The Supreme Court said that we may remember that section 112 of the Indian Evidence Act was enacted at the time when modern scientific advancement in DNA as well as in ribonucleic acid RNA test were not even in contemplation of the legislature. The result of the genuine DNA test is said to be scientific accurate, but even that is not enough to escape the conclusiveness of section 112 of the Indian Evidence Act. For example, if a husband and wife were living together during the time of conception, but the DNA test revealed that the child was not born to the husband, the conclusiveness in law would remain irrebuttable. This may look hard from the point of view of the husband, who would be compelled to bear the fatherhood of a child of which he may be innocent, but even in such a case, the law leans in favor of the innocent child from being bastardized if his mother and her spouse were living together during the time of conception. Hence, the question regarding the degree of proof of non-excess for rebutting the conclusiveness must be answered in the light of what is meant by excess or non-excess, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको अभी एक्सेस और नॉन एक्सेस नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान रखिए, जब हम सेक्शन 112 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में आएंगे तो हम डिटेल पे डील करेंगे कि नॉन एक्सेस क्या होता है। शॉर्ट में आपको बता दूं, नॉन एक्सेस का जो कॉन्टेक्स्ट है जैसा कि यूज़ किया गया है 112 में, वो ये है कि जो हस्बैंड और वाइफ हैं वो एक दूसरे से इतने दूर हैं कि इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू इंडल्ज इन सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। तो अगर नॉन एक्सेस है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है जो ये प्रूव कर दे कि इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू इंडल्ज इन सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, दैट द coitus in the given circumstances is impossible. So in that context non excess is used. It has a bit small nuances which I'll deal with it when we'll finish the majority of the text of Indian Evidence Act, because 112 will come later when we'll finish with relevancy of facts, documentary, secondary evidence, primary evidence, etc., which are the important bits. After finishing those, we can come to next of the short topics. So remember,
from the point of view of the exam, the things and the case law I am telling you now would suffice totally. You have to write all of this. It is only for the purpose of making you understand the application of law and how the law is working that I will deal with the topic of non-access. Alright. No examiner will ask you in detail what is non-access or will give you a problem regarding that, except if you are appearing in Delhi Judicial Service. Never mind. I'll continue. So the next case law that we have to deal with is Bhavani Prasad Jena versus Orissa State Commission for Women. It was reported in 2010, volume number 8, Supreme Court Cases, page number 633. Now in this case, the apex court said in para 22, in our view, when there is apparent conflict between the right to privacy of the person not to submit himself forcibly to medical examination and duty of the court to reach the truth, the court must exercise its discretion only after balancing the interest of the parties and on due consideration whether for a just decision of the matter DNA test is eminently needed or not. DNA test in a matter relating to paternity of the child should not be directed by the court as the matter of course or in a routine manner whenever such a request is made. The court has to consider diverse aspects, including the presumption under section 112 of the Indian Evidence Act, pros and cons of such order, and the test of imminent need, whether it is not possible for the court to reach the truth without the use of such test. तो ये पैरामीटर है, ये केस लॉ भी इंपॉर्टेंट है. ये जो मैं केस लॉ भी आपको बता रहा हूँ ना, गौतम कुंडू जो ब्लड टेस्ट को लेके था, बनारसी दास वर्सेस टीकू दत्ता जो डीएनए को लेके है, भवानी प्रसाद जैना वर्सेस उड़ीसा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन जो ये भी डीएनए को लेके कि कोर्ट अपना डिस्क्रिप्शन कैसे एक्सरसाइज करेगा. दीज आर इंपॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट इन लाइन ऑफ केसेस इज नंदलाल वासुदेव बेडवेक वर्सेस लता नंदलाल बेडवेक, which was decided on 6th of January 2014. Now here is a very important judgment. यहाँ पे बड़ी interesting चीज़ held हुई थी. So in Nandalal Vasudev Bedvek versus Lata Nandalal Bedvek, the Supreme Court again reiterated कि court should not order DNA test when the legitimacy of the child is concerned as a matter of course. But Supreme Court then clarified one thing in this judgment that is unlike any other judgment. Here, the Supreme Court said that although Section 112 raises a presumption of conclusive proof on the satisfaction of the conditions enumerated therein, but the same is rebuttable. The presumption may afford legitimate means of arriving at an affirmative legal conclusion. While the truth or fact is known, in our opinion, there is no need or room for any presumption. Where there is evidence to the contrary, the presumption is rebuttable and must yield to proof. Interest of justice is best served by ascertaining the truth, and the court should be furnished with the best available science and may not be left to bank upon presumptions unless science has no answers for the fact and issue. So in our opinion, when there is a conflict between conclusive proof envisaged under law and a proof based on scientific advancement accepted by the word community to be correct, the latter must prevail over the former. ठीक है, this is very important. तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जब कन्फ्लिक्ट होता है कंक्लूसिव प्रूफ और साइंटिफिक एडवांसमेंट के प्रूफ को, जिसको पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी सही मानती है क्योंकि डीएनए टेस्ट एक्यूरेट होता है 99.99%, तो कोर्ट ने बोला लैटर विल प्रिवेल ओवर द फॉर्मर. Then Supreme Court continued and said that we must understand the distinction between a legal fiction and the presumption of fact. The legal fiction assumes the existence of fact which may not really exist. However, a presumption of fact depends upon the satisfaction of certain circumstances. Those circumstances logically would lead to the fact sought to be presumed. Section 112 of the Evidence Act does not create legal fiction but only provides for presumption. ठीक है. अब इस केस में हस्बैंड ने प्रूव कर दिया था ही हैड नो एक्सेस टू वाइफ एंड द चाइल्ड बिगॉटन, जो टेस्ट डीएनए रिपोर्ट से भी प्रूव हो गया कि वो उसका नहीं है, कि बच्चा उसका नहीं है. तो आफ्टर दैट सुप्रीम कोर्ट सेड दैट वी कैन नॉट कंपेल द अपेलेंट हु वाज द फादर इन दिस केस
टू बेयर द फादरहुड ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है, जो हस्बैंड था वाइफ का, उसके ऊपर हम फादरहुड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों डालें जब वो फादर है ही नहीं? और साइंटिफिक रिपोर्ट भी कॉन्ट्रेरी प्रूव कर रही है। नॉन एक्सेस उसने प्रूव कर दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नॉन एक्सेस उसने प्रूव किया था, और साथ में डीएनए रिपोर्ट भी उसके फेवर में आ गई। तो कोर्ट ने बोला कि वी आर कॉन्शियस दैट द इनोसेंट चाइल्ड मे नॉट बी बास्टर्डाइज्ड एज मैरिज बिटवीन हर मदर एंड फादर वाज सब्सिस्टिंग एट द टाइम ऑफ हर मैरिज, बट इन व्यू ऑफ डीएनए टेस्ट रिपोर्ट्स एंड व्हाट वी ऑब्जर्व्ड अबव, वी कैन नॉट फोरस्टॉल द कॉन्सिक्वेंस। इट इज़ डिनाइंग द ट्रुथ, ये तो सच्चाई को डिनाई करना होगा। ट्रुथ मस्ट ट्रायम्फ इज द हॉलमार्क ऑफ जस्टिस। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो कंक्लूसिव प्रिजम्पशन था उस पे डीएनए टेस्ट को प्रेफरेंस दिया। तो ठीक है, तो ये केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर एक और केस बताता हूँ, शारदा वर्सेस धर्मपाल का। अब इसमें कोर क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट के सामने, वेदर द पार्टी टू द डिवोर्स प्रोसीडिंग कैन बी कंपेल्ड to undergo a medical examination. In this case, the respondent Dharampal, sought an order for medical examination of the wife and a DNA test in order to determine the paternity of the child. The ground that was taken by the appellant Sharda before the Supreme Court that such order violates her right to privacy. Then this 3 judges bench of Honorable Supreme Court held that if for arriving at the satisfaction of the court and to protect the right of a party to the list means litigation, who may otherwise be found to be incapable of protecting his own interests, the court passes an appropriate order. The question of such action being violative of Article 21 of Constitution of India would not arise. The court, having regard to Article 21 of the Constitution of India, must also see to it that the right of the person to defend himself is also adequately protected. It was further held that if respondent avoids the medical examination on the ground that it violates his or her right to privacy, or for a matter right to personal liberty as enshrined under Article 21 of the Constitution of India, then it may in most cases become impossible to arrive such conclusion. तो इससे एक पॉइंट तो आपको आंसर हो गया होगा कि अगर कोर्ट ऑर्डर देता है मेडिकल एग्जामिनेशन में जाने का तो राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन नहीं कर रहा, ठीक है, या आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं कर रहा। सो यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के सामने उठा था शारदा वर्सेस धर्मपाल में, और सुप्रीम कोर्ट ने उसका अफर्मेटिव में आंसर दिया। अब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने भी इस केस को देखते हुए चिंता मधुसूदन राव वर्सेस चिंता नागलक्ष्मी में भी यही बात बोली कि जो कोर्ट्स हैं उनके पास डिस्क्रेशन है टू डायरेक्ट अ पार्टी टू अंडरगो अ मेडिकल टेस्ट इंक्लूडिंग द डीएनए टेस्ट, बट डिस्क्रेशन हैज़ टू बी एक्सरसाइज प्रॉपरली ऑन बीइंग सेटिस्फाइड अबाउट द पार्टी रिक्वायरिंग कोर्ट टू डायरेक्ट सच अ टेस्ट टू एस्टैब्लिश अ स्ट्रॉन्ग प्राइमा फेसाई केस। ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको डीएनए टेस्ट लेने से पहले एक स्ट्रॉन्ग प्राइमा फेसाई केस बेस्ड ऑन नॉन एक्सेस एस्टैब्लिश करना होगा। जब तक आपने वो एस्टैब्लिश नहीं किया तब तक कोर्ट आपके फेवर में डीएनए या मेडिकल एग्जामिनेशन का टेस्ट ऑर्डर नहीं करेगा। The High Court in this case continued and said that the party against whom an order directing to undergo medical test is passed is not permitted to contend that it offends his personal liberty. When the right of a party to the proceeding comes in conflict with the so-called right to privacy and personal liberty of the opposite party, the court has to look into the competing interest of the parties. ठीक है, एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बता दूँ जस्ट राइट नाउ, वो ये है कि जो सेक्शन 112 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट है ना, वो एक मैगजिम पे बेस्ड है। और ये बनारसी दास वर्सेस टीकू दत्ता में ही कहा गया था कि द मैगजिम इज पैटर एस्ट क्वैम नफ्शिया डेमोन्स्ट्रेंट, ही इज़ द फादर वूम द मैरिज इंडिकेट्स। और एक और मैगजिम है उसके अंदर, वो मैगजिम है ओडियो से एट इन ऑनेस्टा नॉन संट इन लीज प्रिजम्टा। इसका मतलब है कि जो लॉ है वो कोई ओडियस प्रिजम्पशन या ख़राब प्रिजम्पशन करना पसंद नहीं करता, वो जनरली लॉफुल प्रिजम्पशन करना पसंद करता है। सो सुप्रीम कोर्ट आफ्टर रेफरिंग, अच्छा इस केस में जो बनारसी दास से टीकू दत्ता है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पैटर एस्ट क्वाम नफ्शिए वाली मैगजिम बताई थी, लेकिन 112 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट एक और मैगजिम पे बेस्ड है जो मैंने अभी सेकंड वाली बताई, ठीक है। तो after referring to all this, the Supreme Court said in the very case that the presumption of legitimacy is this, that the child born of married woman is deemed to be legitimate
and it throws on the person who is interested in making out the illegitimacy the whole burden of proving it. The law presumes that both marriage ceremony is valid and every person born out of lawful wedlock is legitimate. And then it said, Supreme Court said, that only in those situations the law will allow to rebut such presumption where the non-excess is proved, and that non-excess has to be proved by showing a strong preponderance of evidence, not by mere balance of probabilities. इसका मतलब बड़ा स्ट्रिक्ट प्रूफ देना पड़ेगा जो बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा है इन ऑर्डर टू डिस्पेल द प्रिजम्पशन. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं चाहता हूँ आप इसको हमेशा याद रखें. ठीक है कि जब प्रिजम्पशन को डिस्प्लेस करने के लिए मेयरली बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ नहीं चलेंगी. 112 में जो प्रिजम्पशन है उसको डिस्प्लेस करने के लिए मेयर बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ नहीं चलेंगी. देयर हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग प्रिपॉन्डरेंस ऑफ एविडेंस विच इज़ अकिन टू अ स्ट्रिक्ट प्रूफ. बनारसी दास वर्सेस टीकू दत्ता में कहा गया. तो वो थोड़ा ऊपर के लेवल का होता है प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज से. तो हाईएस्ट लेवल आपका होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, उसके नीचे स्ट्रिक्ट प्रूफ या स्ट्रॉन्ग प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, और उसके नीचे बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज. उसके नीचे कौन सा प्रूफ होता है? प्राइमा फेसाई केस सबसे. ठीक है, इस सारी ये एक हायरार्की है इलस्ट्रेटिव कि कौन सा लेवल ऑफ एविडेंस हाईएस्ट है और कौन सा लेवल ऑफ एविडेंस थोड़ा नीचे आता है. अब मैं आपको एक और फाइनल बात बता दूं कि लेट अस सपोज कोर्ट कभी कभी कुछ जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के जो कहते हैं कि कंपेल नहीं करवा सकते आप ब्लड टेस्ट. ठीक है, या डीएनए टेस्ट. लेट अस सपोज कि अगर स्ट्रॉन्ग प्राइमा फेसाई केस नहीं एस्टेब्लिश हुआ है तो लेट अस सपोज कोर्ट इज़ इन द मूड कि चलिए परमिशन ले लेते हैं कि इफ़ द अदर पार्टी इज़ कंसेंटिंग टू अंडरगो द ब्लड टेस्ट और मेडिकल टेस्ट and the other party refuses, कहती है कि I will not undergo the medical test or blood test. So क्या ऐसी सिचुएशन में कोर्ट एक एडवर्स इन्फेरेंस कास्ट कर सकता है? The answer is yes, कर सकता है. कोर्ट कहेगा कि हम आपको कंपेल नहीं करेंगे कि आप मेडिकल टेस्ट अंडरगो करिए, लेकिन उस सिचुएशन में अगर आप मेडिकल टेस्ट में नहीं जाती हैं देन आई विल अज्यूम दैट अगर आप मेडिकल टेस्ट में जाती तो रिजल्ट आपके खिलाफ आते. मतलब एक एडवर्स इन्फेरेंस कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 114 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. ठीक है, तो अभी तो मैंने आपको डीएनए टेस्ट और ब्लड टेस्ट आपको 112 के कंटेक्स्ट में बता दिया. अब ये जान लीजिए बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में, मतलब बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है. अब मैं आपको डीएनए टेस्ट को लेके स्पेसिफिकली बात करता हूँ. अब मैं सेक्शन 112 के कंटेक्स्ट में बात नहीं कर रहा. अब मैं डीएनए टेस्ट के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि लेट अस सपोज यू वांट टू प्रूव एन ऑफेंस ऑफ मर्डर. तो उस पर क्या सिचुएशन है? अब देखिए, इन पट्टू राजन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु ऑन विच वॉज डिसाइडेड ऑन 29th March 2019, the Supreme Court observed that one cannot lose sight of the fact that DNA evidence is in the nature of opinion evidence as is envisaged by section 45 of the Indian Evidence Act. यहाँ पे opinion of experts लिया जाता है. Undoubtedly, an expert giving evidence before the court plays a crucial role. So the court is saying that without a doubt, the expert evidence plays a crucial role since the entire purpose and the object of opinion of evidence is to aid the court in forming its opinion on the question concerning foreign law, science, art, etc. तो DNA टेस्ट कौन सी कैटेगरी में फिट करेगा? साइंस की कैटेगरी में, on which the court might not have the technical expertise to form an opinion on its own. In criminal cases, such question may pertaining to certain aspects such as ballistics, fingerprint matching, handwriting comparison, and even DNA testing or superimposition techniques are relevant. Then the court said, undoubtedly, it is the duty of the expert witness to assist the court effectively by furnishing it with relevant report based on his expertise along with reasons, so that the court may form its independent judgment by assessing such materials and reasons furnished by the expert to coming to the appropriate conclusion. Be that as it may, it cannot be forgotten that opinion evidence is advisory in nature. याद रखिएगा, जब मैं 45 पे आऊँगा मैं एक बार ये पॉइंट फिर रिटरेट करूँगा, लेकिन अभी मैं लॉ का इनकैप्सुलेट किए दे रहा हूँ फॉर आपके पर्पज़ के लिए, क्योंकि हम ब्रीफ ओवरव्यू देख रहे हैं ना एविडेंस एक्ट का.
तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, बी दैट एज इट मे, इट कैन नॉट बी फॉरगॉटन दैट द ओपिनियन एविडेंस इज एडवाइजरी इन नेचर एंड द कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय द एविडेंस ऑफ एक्सपर्ट्स. Like all the other opinion evidence, the probative value accorded to DNA evidence also varies from case to case depending on fact and circumstances and weighed according to the evidence on record, whether contrary or corroborative. This is all the more important to remember given that even though the accuracy of DNA evidence may be increasing with the advancement of science and technology with every passing day, thereby making it more and more reliable, we have not yet reached a juncture where it may be said to be infallible. Thus, it cannot be said that the absence of DNA evidence would lead to an adverse inference against a party, especially in presence of other cogent and reliable evidence on record in the favor of such party. अब ध्यान रखिए, ये जो जजमेंट है, अभी 112 की कंटेक्स्ट के बाहर से बात कर रहा हूँ. अब we are dealing with much more wider concepts. तो देखिए कहाँ कहाँ डीएनए एविडेंस यूज किया गया. अब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस तमिलनाडु वर्सेस जॉन डेविड. इन दिस केस व्हाट हैपेंड दैट अ यंग बॉय हु वाज स्टडीइंग इन एमबीबीएस कोर्स was brutally murdered by his senior. The torso and the head were recovered from different places which were identified by the father of deceased. For confirming the said fact, the blood samples of the father and the mother of the deceased were taken, which were subject to the DNA test. And from the DNA, the identification of the disease was proved. तो इस केस में DNA टेस्ट को आइडेंटिफिकेशन के पर्पस के लिए यूज़ किया गया. Similarly, in Krishan Kumar Malik versus State of Haryana, it was a gang rape case where the prosecution did not conduct DNA test or analysis and matching the semen of the appellant accused with that which was found on the undergarments of the prosecutrix. Then in that context, the apex court held that after incorporation of section 53A in CRPC, it has become necessary for the prosecution to go for a DNA test in such type of cases. Agar any CRPC student here would remember that section 53A requires examination of the person accused of rape by a medical practitioner. And the crux is that when the accused person is arrested on the charge of committing rape, and there are reasonable grounds for believing that the examination of his person will afford evidence as to commission of such offense, then he can be examined by a medical professional. So usually what happens that such examination is done at the request of the police officer who is not below the rank of sub-inspector, and the medical practitioner records the name, address of the accused, age of the accused, mark of injury, description of the material and other material particulars in reasonable details, and it contains a quite detailed report. And similarly, examination of victim of rape is done under section 164A of the CRPC. Alright. So you need to remember how to interlink law. So that is what the court mandated in Krishan Kumar Malik. Similarly, in Surendra Kohli versus State of Uttar Pradesh, the appellant was a serial killer and was awarded death sentence, which was confirmed by the High Court. While confirming the death sentence, the apex court relied on the result of the DNA test conducted on the part of the body of the deceased girl. And now let me tell you in paragraph 12 what the Supreme Court said in that case. The Supreme Court says that the DNA test of Rimpa by CDFD, a pioneer institute in Hyderabad, matched with that of blood of her parents and brother. The doctor at AIIMS have put the parts of the deceased girl which have been recovered by the doctors of AIIMS together. These bodies have been recovered in the presence of the doctors of AIIMS at the pointing out by the accused Surendra Kohli. Thus the recovery is admissible under section 27 of the Indian Evidence Act. अभी recovery evidence की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम उसी की बात करेंगे. DNA test की वजह से ही जो था identification हुआ, and that was used by the court, that was relied upon by the court in order to convict the accused person and confirm the death sentence. Similarly, in Muhammad Ajmal Muhammad Amir Kasab alias Abu Mujahid versus State of Maharashtra, the accused was awarded death sentence on the charges of killing large number of innocent person, and the stains of sweat, saliva and other bodily secretions on articles that were recovered from him were subject to DNA test, and DNA test of that was matched with the several accused. So that was also used to convict that person. Similarly, in Sandeep versus State of Uttar Pradesh, in this case the facts related to the murder of a pregnant paramour girlfriend and unborn child of the accused.
The DNA report confirmed in this case that the appellant Sandeep was the father of the unborn child, and the court relied upon the DNA report in order to convict the accused person. मतलब देखिए सिर्फ उसी पे रिलाई नहीं करता है, कोर्ट के पास और भी एविडेंस होते हैं जिसको वो कंसिडर करता है. द DNA एविडेंस फॉर्म्स अ लिंक इन द चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेज बट इज़ नॉट द सोल क्राइटेरिया. तो ये मैं बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ DNA रिपोर्ट्स यूज़ की गई थी और DNA एविडेंस कहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड किया था. सिमिलरली एक लास्ट केस और जान लीजिए, राजकुमार वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. In this case, the apex court was dealing with the case of rape and murder of a 14-year-old girl. The DNA report established the presence of semen of the appellant in the vaginal swab of the prosecutrix, and the conviction was recorded while relying upon the DNA report. ठीक है, इस केस में भी यही हुआ था. तो ये इस केस से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि देखिए 112 को तो आप अपनी जगह छोड़ दीजिए, लेकिन उसके अलावा भी इसके बहुत यूजेस हैं. ठीक है. So now you have a scientific outlook on this matter. Now we can start. A brief overview हमारा ख़त्म हो चुका है इंडियन एविडेंस एक्ट का और प्रिलिमिनरी कंसेप्ट्स का. Now we can start with the actual reading of the Bayer Act and we can begin. तो अब हम पहले सेक्शन 1 में इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं क्या है. अब सेक्शन 1 में दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि एविडेंस एक्ट किस पे नहीं अप्लाई करती है. तो एफिडेविट पे नहीं अप्लाई करती है और एनी प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर उन पे नहीं अप्लाई करती है. किस डेट में द एविडेंस एक्ट केम इनटू फोर्स? इट केम ऑन फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872. एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन प्रीलिम्स, अक्सर आता है. नाउ वी कम टू इंटरप्रिटेशन क्लॉज. इंटरप्रिटेशन क्लॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसमें क्या है? कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स लीगली ऑथोराइज्ड टू टेक एविडेंस. So whoever is a court or a judge, whoever is a judge or a magistrate who is legally authorized to take evidence is labeled as a court, except that person shouldn't be an arbitrator, because arbitrator is also authorized to take evidence. And you know Evidence Act does not apply on arbitration proceedings. That is why arbitrators are kept outside the purview of Indian Evidence Act, and arbitrators are not judges. You should remember that. Next is fact, means and includes. Now this is the definition of fact that you need to be conscious of. Fact means and includes anything, state of things or relation of things which is capable of being perceived by senses. तो देखिए यहाँ पे जो मेन लाइन है ना जिस पे आपको फोकस करना है, anything which is capable of being perceived by senses. If you are listening to me, then your sense of hearing is making you perceive this lecture and understand it. If you could see me, then it is the sense of sight which makes you understand and comprehend the sight that you are seeing. ठीक है? So that would be a fact. Second category that has been put in the definition of fact is that any mental condition of which a person is conscious. So merely capacity to perceive anything by senses is not the sole criteria of determining whether the fact exists or not, but it includes any mental condition of which a person is conscious. The illustrations will make it clear. Now the first illustration says that there are certain objects arranged in a certain order in a certain place is a fact. Secondly, the man heard or saw something is a fact. Thirdly, the man said certain words is a fact. D, that the man holds a certain opinion or has a certain intention, acts in good faith or fraudulently, or uses a particular word in a particular sense, or is or was at a specified time conscious of a particular sensation is a fact. अब ये जो illustration है, ये illustration है उसका कि any mental condition of that of which a person is conscious. Similarly, illustration E says that a man has a certain reputation is a fact. ठीक है. तो illustration D primarily जो है वो उसका illustration है कि any mental condition of which a person is conscious. तो जैसे ये जो है intention, good faith, क्या उसका fraudulent intention है या वो क्या चीज़ किस particular sense में कह रहा है, ये mental condition से relate करता है. तो ये उसका illustration है. ठीक है. Then we come to relevant. Now the definition clause establishes relevant as one fact is said to be relevant to one another
when one is connected with the other in any of the ways referred to in provision of this act relating to relevancy of fact. तो सेक्शन 5 से 55 तक जितनी भी चीज़ें हैं वो ही सारी चीज़ें रेलेवेंट हैं. Next we come to fact in issue. The expression fact in issue means and includes any fact from which either by itself or in connection with other facts the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows. Now explanation. Whenever under the provisions of law for the time being in force relating to civil procedure, any court records an issue of fact, the fact to be asserted or denied in the answer to such issue is a fact in issue. So illustration देख लीजिए. A is an accused of murder of B. At his trial, the following facts may be an issue: that A caused B's death, that A intended to cause B's death, that A had received grave and sudden provocation from B, that at the time of doing the act which caused B's death was by the reason of unsoundness of mind incapable of knowing his nature. तो फैक्ट इन इशू के सामने आप एक चीज़ लिख लीजिए कि इसको लैटिन में बोला जाता है फैक्टा प्रोबेंडम और रेलेवेंट फैक्ट्स को बोला जाता है फैक्टा प्रोवेंशिया. ठीक है, यू शुड बी वेरी अवेयर अबाउट दैट क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है अक्सर. सो यू शुड बी क्लियर रिगार्डिंग दैट. फैक्ट इन इशू मेन चीज़ें होती हैं जो फैक्ट्स इशू में होते हैं. कोर्ट्स एक्चुअली उन्हीं पे फोकस करता है कि ये एस्टैब्लिश हो गए तो ऑफेंस प्रूव हो जाएगा या किसी पार्टी का केस प्रूव हो जाएगा. रेलेवेंट फैक्ट जो होते हैं वो फैक्ट इन इशू को साबित करने में मदद करते हैं. ठीक है, ये इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा. अब मैं थोड़ा इस पर एलैबोरेट करता हूँ कि अभी तक जितना पढ़ा ये चीज़ें क्या है. अब एक चीज़ समझिए, एविडेंस एक्ट क्या है. ठीक है, देखिए एविडेंस एक्ट पहली बात तो प्रोसीजरल लॉ की कैटेगरी में आता है. ये चीज़ आप जानते होंगे. एविडेंस एक्ट इज़ अ लॉ ऑफ प्रोसीजर. ठीक है, इसको लेक्स फोराई की कैटेगरी में रखा जाता है. ये सब्सटेंशिव लॉ नहीं है. एविडेंस एक्ट इज़ नॉट अ सब्सटेंशिव लॉ, इट इज़ अ प्रोसीजरल लॉ. तो जो लॉ राइट, ड्यूटीज और लाइबिलिटी डिफाइन करते हैं वो सब्सटेंशिव लॉ की कैटेगरी में आते हैं. और जो लॉ ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि किस मोड में आप सब्सटेंशिव लॉ को एनफोर्स करेंगे या रेगुलेट करेंगे वो प्रोसीजरल लॉज कहलाते हैं. ठीक है, तो एविडेंस एक्ट क्या है? एविडेंस एक्ट बताता है कि आप किसी सब्सटेंशिव लॉ, लेट अस सपोज आईपीसी इज अ सब्सटेंशिव लॉ, आईपीसी में ऑफेंसेस डिस्क्राइब्ड है. आप आईपीसी को प्रूव कैसे करेंगे? ठीक है, सो एविडेंस एक्ट एक्चुअली टेल्स यू दैट व्हाट एविडेंस इज रेलेवेंट, what evidence you can produce and what evidence with the court deem admissible or relevant. ठीक है, ये मेन पर्पस है एविडेंस एक्ट का. ये कौन से लॉ की कैटेगरी में आता है? प्रोसीजर लॉ और लेक्स फोराई, लॉ ऑफ द फोरम. अब देखिए, ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन इज व्हाट? एनफोर्समेंट ऑफ द राइट ऑफ लाइबिलिटीज, है ना. आप कितनी मतलब एट द फंडामेंटल लेवल आज जुडिशियल इंक्वायरीज में जब देखेंगे तो एट द मोस्ट फंडामेंटल लेवल यू विल फाइंड कि ऑब्जेक्ट जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन का यही है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट एंड लाइबिलिटी. तो राइट्स और लाइबिलिटीज तो सब्सटेंशियल लॉ डिटरमाइन करेगा और उसको इन्फोर्स कैसे करना है ये प्रोसीजर लॉ डिटरमाइन करेगा. तो देखिए, इंडिया में जो एविडेंस एक्ट है ये प्राइमरली एडमिसिबिलिटी और रेलेवेंसी दोनों गवर्न करती है. देखिए इंग्लैंड में क्या है ना कि अगर कोई चीज़ रेलेवेंट करार देनी है तो या तो आप उसे लॉजिकली रेलेवेंट दिखा दीजिए या तो आप उसे लीगली रेलेवेंट दिखा दीजिए. इंडिया में सिर्फ लीगल रेलेवेंसी चलती है. अगर 5 से 55 के बीच में नहीं फॉल किया कोई फैक्ट तो वो रेलेवेंट नहीं कहलाएगा. ये बात याद रख लीजिएगा. इंडिया में द रेलेवेंसी एंड द एडमिसिबिलिटी आर ऑल डिटरमाइंड बाय द इंडियन एविडेंस एक्ट और द अदर एविडेंस एक्ट विच स्पेशली डील्स विद दोज मैटर. क्योंकि एक बैंकर्स बुक ऑफ एविडेंस एक्ट भी होती है. ठीक है, इसलिए मैं सारी चीज़ें तो नहीं बता रहा आपको क्योंकि वो रेलेवेंट नहीं है आपके एग्जाम के पर्पज़ से. ये मेन चीज़ जान लीजिए कि इंडिया में एडमिसिबिलिटी और रेलेवेंसी कौन डिसाइड करेगा? एविडेंस एक्ट डिसाइड करेगी. ऑफकोर्स उसको इन्फोर्स जज करता है. सो फॉर द पर्पस ऑफ इंडिया द स्टैट्यूट इटसेल्फ हैज़ डिटरमाइंड व्हाट इज रेलेवेंट एंड व्हाट इज नॉट. तो आप लॉजिकली रेलेवेंट वाला पॉइंट यूज़ करके किसी एविडेंस को एडमिट नहीं कर सकते अगर वो 5 और 55 के
बीच में नहीं फॉल कर रहा है। रेलेवेंट होना बहुत ज़रूरी है अंडर दिस कैटेगरी। अगर इस कैटेगरी से बाहर है देन द फैक्ट इज़ नॉट रेलेवेंट, ये बात याद रखिएगा। अब कुछ 3 मेन प्रिंसिपल हैं एविडेंस एक्ट के जो आपको ध्यान रखना चाहिए, ये अंडर पिनिंग्स हैं इंडियन एविडेंस एक्ट की। पहला, एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू द मैटर्स इन इशू। दूसरा, हियर से एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड। और तीसरा, बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन ऑल केसेस। ये 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं लॉ ऑफ एविडेंस के। लॉ ऑफ एविडेंस किसने क्या कहते हैं ड्राफ्ट किया था? इट वाज ड्राफ्टेड बाय सर जेम्स स्टीफेंस। एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि एक्ट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव बिकॉज इट डज नॉट पपर्ट टू कंटेन ऑल द रूल्स ऑफ एविडेंस, ठीक है। तो कोर्ट चाहे, इंडियन कोर्ट्स अगर चाहें तो कुछ रेलेवेंट प्रिंसिपल्स इंग्लिश कॉमन लॉ के भी इंग्लिश कॉमन लॉ के भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट्स ये नहीं कर सकते कि एक ऐसा प्रिंसिपल इंपोर्ट कर लें जो एविडेंस एक्ट के कॉन्ट्ररी हो। तो वो गैप्स और लैक्यूना फिल करने के लिए या किसी क्वेश्चन का किसी सेक्शन को ढंग से इंटरप्रेट करने के लिए तो इंग्लिश कॉमन लॉ के प्रिंसिपल्स यूज कर सकते हैं, पर वो कोई ऐसा प्रिंसिपल इंपोर्ट नहीं कर सकते जो एक्ट से इनकंसिस्टेंट हो। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब एविडेंस एक्ट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है रेलेवेंसी 5 से 55 तक। दूसरा है मोड ऑफ प्रूफ जो डील करता है चैप्टर 3 से चैप्टर 6 से जो 6 तक, जो बताता है कि हाउ आर द रेलेवेंट फैक्ट्स आर टू बी प्रूव्ड, दैट इज फ्रॉम सेक्शन 56 टू 100। और तीसरा है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, प्रभाव क्या होगा उसका और प्रोड्यूस कब किया जाएगा एंड बाय वूम इट विल बी प्रोड्यूस्ड। वो चैप्टर 7 से चैप्टर 9 तक डील करता है एंड द सेक्शंस इज 101 टू 167। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा एविडेंस एडमिसिबल है या नहीं, या रेलेवेंट है या नहीं? ये जज डिसाइड करेगा। कौन सा सेक्शन ये बताता है? सेक्शन 136 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट सेज द जज टू डिसाइड द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। उस सेक्शन को बहुत याद रखिएगा, वो दिखाता है कि जज की कितनी पावर है। जज को नहीं लगा कि अगर कोई चीज़ एडमिसिबल है तो फिर नहीं एडमिट होगी, आप कितना भी कहते रहिए। जज को अगर कोई फैक्ट रेलेवेंट नहीं लगा तो वो रेलेवेंट नहीं माना जाएगा। सो रिमेंबर, जजेस होल्ड अ वेरी क्रूशियल पोजीशन इन दिस केस। तो आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी चाहिए एविडेंस एक्ट में कि जो एविडेंस एक्ट है ये जुडिशियल इंक्वायरीज पे ही अप्लाई करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव या डिपार्टमेंटल या डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स पे नहीं अप्लाई करती है। इट इज़ द लेक्स फॉरी विच मीन्स इट इज़ द लॉ ऑफ प्रोसीजर। एक और चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, द एक्ट कंसोलिडेट, डिफाइंस एंड अमेंड्स द लॉ ऑफ एविडेंस, लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं है। कंसोलिडेट करती है बट इट्स नॉट एग्जॉस्टिव। उसका मतलब है इट डज नॉट पर्पोर्ट टू कंटेन ऑल द रूल्स ऑफ एविडेंस। सो कुछ सेक्शंस के इंटरप्रिटेशन को लेके जो कोर्ट्स हैं इंग्लिश कॉमन लॉ या इंग्लिश प्रिंसिपल्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट्स कैन नॉट इंपोर्ट एनी प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद द सेक्शन और द प्रिंसिपल दैट इज ऑलरेडी द पार्ट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। फैक्ट इन इशू का आपको ध्यान रखना है। फैक्ट इन इशू क्या कहे जाते हैं? फैक्टा प्रोबंडम और रेलेवेंट फैक्ट या एविडेंशियरी फैक्ट्स को क्या बोला जाता है? फैक्टा प्रोबेंस या फैक्टा प्रोबेंशिया, ठीक है। फैक्टा इन्हीं को लेके क्वेश्चन आएगा कि फैक्टा प्रोबेंशिया किसको कहते हैं, फैक्टा प्रोबंडम किसको कहते हैं। फैक्टा प्रोबंडम याद रखिएगा, उसको कहते हैं फैक्ट इन इशू को। फैक्टा प्रोबेंशिया कहते हैं रेलेवेंट फैक्ट को या एविडेंशियरी फैक्ट्स को। अब एक और बात आपको बताता हूँ। देखिए, फैक्ट इन इशू के बारे में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फैक्ट इन इशू जो हैं वो हमेशा किसी ना किसी तरीके से सब्सटैंशिव लॉ से बहुत रिलेट करते हैं, ठीक है। तो आप जनरली देखिए कि मान लीजिए ट्रायल मर्डर का होना है, तो देखिए फैक्ट इन इशू में मर्डर के इंग्रेडिएंट ज़रूर शामिल होंगे, ठीक है। वैसे ही अगर सिविल केस है तो सिविल केस में भी फैक्ट इन इशू वुड डिपेंड अपॉन द सब्सटैंशिव लॉ विच इज़ एप्लीकेबल टू द पार्टी। For example, let us suppose in civil case the party alleges a tort of negligence. Then ingredients of liability for negligence which are in dispute would be the fact and issue. ठीक है। Similarly, अगर contract का breach हुआ है तो वैसे ingredients जो breach of contract के लिए relevant होते हैं that would become the fact and issue. अब उनको proof कैसे किया जाएगा वो relevant fact के हिसाब से होगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब relevant fact
को लेके कुछ बात करता हूँ। अभी मतलब मैं ब्रीफ ओवरव्यू कर रहा हूँ, अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग सेक्शन वाइज कमेंट्री करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो अभी रेलेवेंट फैक्ट के पर्पस के लिए मैं रेलेवेंट फैक्ट्स को आई थिंक 7 कैटेगरीज में बांटूंगा। पहली कैटेगरी है फैक्ट्स लॉजिकली कनेक्टेड विद फैक्ट्स एंड इशू, ये 6 से 16 तक हैं। सेकेंड कैटेगरी है एडमिशंस एंड कन्फेशन, जो 17 से 31 तक हैं। थर्ड कैटेगरी है स्टेटमेंट्स बाय नॉन विटनेस, जो 32 एंड 33 में कंटेंड है। फोर्थ कैटेगरी है स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, जो 34 से 38 तक है। फिफ्थ कैटेगरी है जजमेंट इन अदर केसेस वेयर द जजमेंट बिकम्स रेलेवेंट, 40 से 44 तक। सिक्स्थ कैटेगरी है ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन्स, 45 से 51 तक। सेवेंथ कैटेगरी है एविडेंस एज टू कैरेक्टर, सेक्शन 52 से 55 तक। तो इन कैटेगरीज में हमारे रेलेवेंट फैक्ट्स का लेक्चर और वो चलेगा, एनंसिएशन ऑफ लॉ। अब हम थोड़ा इंटरप्रिटेशन क्लॉज में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जरा डॉक्यूमेंट्स पढ़ लें, देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या कहता है। डॉक्यूमेंट्स मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय द मीन्स ऑफ लेटर, फिगर्स और मार्क्स, or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter। तो अगर मैं आपको खाली पेज दिखाऊं तो क्या वो डॉक्यूमेंट है? The answer is no, that is not a document। लेकिन अगर मैं उस पर कुछ लिख दूं, स्क्रिबल कर दूं, तब वो डॉक्यूमेंट बन जाएगा। सिमिलरली एक वॉल है, अब वॉल तो जनरली डॉक्यूमेंट नहीं होती है, वो तो पार्ट ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। पर लेट अस सपोज मैं एक वॉल पे कॉन्ट्रैक्ट के सारे टर्म्स रिड्यूस कर दूं, ठीक है, तो अब वॉल क्या बन गई? अब वॉल हैज एम्ब्रेस्ड द नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर मान लीजिए मैं किसी स्टोन पे कुछ इंग्रेविंग्स कर दूं, कुछ मार्क्स लिख दूं या कोई लेटर और फिगर्स बना दूं, तो क्या बन गया वो स्टोन? वो डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आ गया। तो जो डॉक्यूमेंट है ना, ये बहुत ही वाइड टर्म है एविडेंस एक्ट के पर्पस के लिए। उसमें सिर्फ जो हम लोग कॉमन सेंस में जो हम लोग डॉक्यूमेंट कंसिडर करते हैं, सिर्फ वही नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इलस्ट्रेशन देखिए, कहता है अ राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट, जो हम पॉपुलर सेंस में रहते हैं। फिर वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड और फोटोग्राफ्ड आर ऑल्सो डॉक्यूमेंट, वो भी डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में है, ठीक है। देन अ मैप और प्लान इज अ डॉक्यूमेंट, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और अ स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट, अ कैरिकेचर इज अ डॉक्यूमेंट। कैरिकेचर आप समझते होंगे, वो कार्टून बनाते हैं। आप टाइम कोई पेपर निकालिएगा, देखिए वहाँ पे कार्टून वार्टून ज़रूर बना होता है। तो अगर किसी उसमें सार्केज़म होता है, मॉकिंग अगर होती है, तो उसे कैरिकेचर कहते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट को लेके एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वो एम्ब्रेस करता है कि एनी मैटर विच इज़ एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय द मीन्स ऑफ लेटर, फिगर्स और मार्क्स, or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter। That is very essential, ठीक है। तो सिर्फ पॉपुलर सेंस में डॉक्यूमेंट को कंसिडर मत करिएगा। अपना माइंड जब भी आप वर्ड डॉक्यूमेंट सुने, सिंस यू बिलोंग टू द लीगल फील्ड, एक बात को हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप वर्ड डॉक्यूमेंट सुने ना, तो आप कॉमन सेंस की वैल्यू में मत कंसिडर करिए, आप उसको एकदम उसके पूरे लीगल सेंस में समझिए। Then we come to the point of evidence. Evidence means and includes, first, all statements which the court permits or requires to be made before it by the witnesses in relation to matters of fact under inquiry. Such statements are called oral evidence. Secondly, all documents including electronic records produced for the inspection of the court. Such documents are called डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो अब देखिए, ये जो मीन्स एंड इंक्लूड्स जो लिखा है, इसका मतलब क्या है? ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है ना। ये पूरी तरीके से एग्जॉस्टिवली डिफाइन नहीं कर रही। जब भी आप, एक रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट बता देता हूं, जब भी आप किसी भी क्लॉज में पढ़ें, लिखा है इंक्लूसिव, ठीक है, लेजिस्लेचर ने लिखा है इट इंक्लूड्स, इसका मतलब ये है कि लेजिस्लेचर इंक्लूड लिखने का कारण इसलिए एनविसेज करता है कि देखिए, वो कोर्ट्स को ये बता रहा है कि हम पूरी तरीके से सेक्शन को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इलस्ट्रेट कर रहे हैं। तो उसको बोला जाता है कि द डेफिनेशन इज इलस्ट्रेटिव नॉट एग्जॉस्टिव, ठीक है। जब भी इंक्लूड शब्द यूज होता है, इसका मतलब ये मान लिया जाता है कि जो डेफिनेशन जो लेजिस्लेचर दे रहा है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है। अब देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा एकेडमिक हो जाता हूँ आपके लिए, जिससे आपको थोड़ा और समझ में आए कि आपको प्रॉपरली जब लिखना होगा तो कैसे लिखना है। तो अब देखिए,
फॉर दिस पर्पस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एविडेंस का लिटरल मतलब क्या है, कि एविडेंस इम्प्लाइज अ स्टेट ऑफ बीइंग एविडेंट, ठीक है, कि समथिंग विच इज प्लेन अपैरेंट और ऑब्वियस, ठीक है, बट इट इज अप्लाइड टू दैट विच टेंड्स टू रेंडर एविडेंस और जनरेट प्रूफ ऑफ अ फैक्ट, ठीक है. द टर्म एविडेंस मीन्स एनीथिंग बाय विच द अलेजेड मैटर ऑफ फैक्ट इज आइदर एस्टैब्लिश्ड और डिसप्रूव्ड. इस सेंस में एविडेंस का यूज किया गया है. अब इसी डेफिनेशन ऑफ एविडेंस को लेके भी एक केस है, हरिचरण कुर्मी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1964, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1184. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डेफिनेशन ऑफ एविडेंस विच इज गिवन इन एविडेंस एक्ट इज इनकम्प्लीट एंड डिफेक्टिव. इट एक्सक्लूड्स द स्टेटमेंट एंड एडमिशन ऑफ द पार्टीज, their conduct and demeanor, which is the outward behavior, before the courts, circumstances coming under the direct cognizance of the court, and the fact which the court can take judicial notice of, and the fact which the court must or may presume. तो मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये डिफेक्टिव डेफिनेशन है जो दी गई है, क्योंकि इसमें एडमिशन इसकी कैटेगरी से बाहर है, डिमेनर उसकी कैटेगरी से बाहर है. जो कोर्ट्स जिन चीज़ों का जुडिशियल नोटिस लेते हैं वो चीज़ें उन कैटेगरी के बाहर हैं. एडमिशन कन्फेशन ऑफ एन अक्यूज पर्सन भी ऑर्डिनरी सेंस ऑफ टर्म में नहीं माना जाता है एविडेंस की कैटेगरी में. सिमिलरली जो ओथ जो जब भी किसी को ओथ पे क्रॉस एग्जामिन किया जाता है, लेट अस सपोज अ पर्सन इज बीइंग क्रॉस एग्जामिन्ड, तो उसको भी एविडेंस की कैटेगरी में नहीं लाया गया है, मतलब यहाँ पे लिखा नहीं गया है, पर ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं एज एविडेंस. देखिए क्रॉस एग्जामिनेशन तो नहीं यूज़ होता है. क्रॉस एग्जामिनेशन इज यूज टू erode the credibility of the witness. Cross examination is not treated as the evidence, but it is used to erode the credibility of a particular witness. तो बेसिकली कोर्ट यहाँ पे बोल रहा है कि जो एविडेंस है, ये जो एविडेंस एक्ट में जो एविडेंस की डेफिनेशन दी गई है कंप्लीट नहीं है, डिफेक्टिव है, ठीक है. जबकि आप जब एक्चुअली एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि को अक्यूज की कन्फेशन का यूज़ होता है. कन्फेशन का भी अपना सब्सटेंशियल लॉ है, कन्फेशन भी यूज़ की जा सकती है कन्विक्ट करने के लिए हैं. कई चीज़ों पे एडमिशंस जो हैं, अगर मान लीजिए कोई फैक्ट एडमिट हो गया देन इट नीड नॉट बी प्रूव्ड. एडमिशंस भी एविडेंस की तरह यूज़ किए जाते हैं, लेकिन एविडेंस की डेफिनेशन में तो ये नहीं लिखा है. तो कोर्ट कह रहा है ये जो एविडेंस की जो डेफिनेशन दी है ना, ये डिफेक्टिव है, ये कंप्लीट नहीं है. ये चीज़ें ध्यान रखिएगा. अभी जितनी मैंने चीज़ें मेंशन की इसका मतलब ये मत समझ लीजिए कि वो एविडेंस की कैटेगरी में नहीं आती, वो आती हैं, लेकिन इस सेक्शन में जो एविडेंस डिफाइन किया गया है उसको कोर्ट कहता है कि ये ढंग से डिफाइन नहीं किया गया है, इसको इसमें कई चीज़ें एक्सक्लूड करके रखी गई हैं कि भाई आप डीमेनर कंसिडर नहीं करते. अब डीमेनर को लेके आपको सेक्शन नहीं मिलेगा एविडेंस एक्ट में, ये आपको CRPC में मिलेगा सेक्शन 280 में, जहाँ पे जज जब किसी विटनेस का एग्जामिनेशन देख रहा होता है तो उसका डीमेनर, वो कैसे बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है, क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसका डीमेनर देखता है. तो डीमेनर बहुत रेलेवेंट होता है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द वेट ऑफ एविडेंस एंड द क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस, ठीक है. तो कोर्ट के हिसाब से बेसिकली क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप जब सारी चीज़ें देखें, पूरी स्कीम ऑफ एविडेंस एक्ट देखें, तो आपको लगता है कि एविडेंस की जो डेफिनेशन जो दी गई है सेक्शन 3 में इंटरप्रिटेशन क्लॉज में, वो कई चीज़ें एक्सक्लूड करती है. वो जुडिशियल नोटिस के बारे में बात नहीं कर रही, जबकि सेक्शन 56 और 57 उसके बारे में बात करेंगे. वो क्या कहते हैं, एडमिशन और कन्फेशन के बारे में बात नहीं कर रही, जबकि एडमिशन और कन्फेशन उस कैटेगरी में आएंगे. तो इन सारी चीज़ों को लेके कोर्ट वाज लाइक कि डेफिनेशन इज़ नॉट वेरी गुड. तो अच्छा, ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया एकेडमिक सेंस के लिए है, ठीक है, इसको मत समझ लीजिएगा यू हैव टू मेंशन इन एग्जाम. अब एग्जाम में मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस इस सेंस के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो डेफिनेशन दी गई है ये इंक्लूसिव है, ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एविडेंस और प्रूफ में बहुत डिफरेंस होता है. प्रूफ चीज़ अलग होती है. एविडेंस के अंदर तो लीगल मीन्स से इंक्लूड किया हुआ या आउटसाइड भी मीन्स से इंक्लूड किया हुआ कोई भी ऐसा फैक्ट आ सकता है विच इज सबमिटेड फॉर जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन. बट प्रूफ इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फैक्ट इन इशू बाय प्रॉपर और लीगल मीन्स टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट. तो ध्यान रखिएगा, रिजल्ट ऑफ एविडेंस इज प्रूफ, बट प्रूफ और एविडेंस एक साथ इंटरचेंजेबली यूज नहीं हो सकते. दे आर नॉट सिनोनिमस टू ईच अदर और एनालॉगस टू ईच अदर, ये ध्यान रखिएगा.
एविडेंस इज यूज टू प्रूव समथिंग, यह बात ध्यान रखिएगा। कई लोग एविडेंस और प्रूफ को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, कहते हैं इसका प्रूफ दो। प्रूफ नहीं दिया जाता, एविडेंस दिया जाता है, एविडेंस लीड्स टू प्रूफ। सिमिलरली एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो रेलेवेंसी है इंडियन एविडेंस एक्ट में, वो इम्प्लाई करती है एक रिलेशनशिप विद द फैक्ट इन इशू जिसकी टेंडेंसी ऐसी हो विच कन्विंसेस द जज एज टू एग्जिस्टेंस और अदरवाइज दैट इज नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट इन इशू। तो जो रेलेवेंसी, जो एविडेंस एक्ट में जो रेलेवेंट एविडेंस माना गया है ना, उसमें द वर्ड रेलेवेंट मीन्स दैट एनी टू फैक्ट्स to which it is applied are so related to each other that according to the common course of event, one can be taken by itself or in connection with the other fact to prove or render probable the existence or non-existence of the other. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो relevancy of fact है वो एविडेंस एक्ट की, वो एविडेंस एक्ट में फैक्ट एंड इशू को प्रूव करने के लिए यूज़ होती है और उसकी probability एक तरीके से दिखाने कि वो फैक्ट एंड इशू एग्जिस्ट करता है या उसे डिस्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। वैसे ही जो प्रूफ है और जो एविडेंस है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, ये दोनों टोटली डिफरेंट थिंग्स हैं। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ, वो है कि एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस क्या होता है। अब देखिए, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस इज इन अदर वर्ड्स कैन बी, यू कैन टर्म इट एज क्रेडिबिलिटी ऑफ एविडेंस, कि उस पे कितना रिलाई किया जा सकता है या उसकी प्रोबेटिव वैल्यू क्या है, ये होता है एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। तो एक तरीके से मान लीजिए कोई विटनेस आके कोर्ट में कुछ बोल रहा है या कोर्ट के सामने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया, तो कोर्ट जब इस क्वेश्चन को डिटरमाइन करता है कि हम कितना विटनेस पे रिलाई कर सकते हैं या कितना विटनेस की टेस्टिमनी पे रिलाई कर सकते हैं या जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया है ये कितना रिलायबल है, तो इसका मतलब है कि कोर्ट उस एविडेंस को एप्रिशिएट कर रहा है, ठीक है। सो दैट इज द एक्सरसाइज ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, कि जब कोर्ट डिटरमाइन करता है कि ये कौन सा एविडेंस कितना रिलायबल है, देन इट इज सेड दैट द कोर्ट इज एप्रिशिएटिंग द एविडेंस। और ध्यान रखिएगा, एप्रिसिएशन कैसे किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉड प्रोबेबिलिटीज ऑफ द केस, ठीक है, एंड द क्रेडिबिलिटी इज ऑल्सो डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द सेम फैक्टर। अब थोड़ा मैं प्रोबेटिव फोर्स पे आपको कुछ बता दूं, ये भी कुछ कंसेप्ट्स हैं दैट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ, कि when a particular evidence aids in proving the fact in controversy, तो उसको कहा जाता है उसकी probative force. So what and how much proof is necessary to convince the judge as to existence or non-existence of any fact and issue would depend upon the many circumstances and different standards of proof as demanded in either criminal trial or civil trial. So as a rule, the graver the offense, the stricter the degree of proof, ठीक है। और वैसे सिविल केसेस में बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज होता है, क्रिमिनल केसेस में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो इट इज अ प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो अगर कोई पर्टिकुलर एविडेंस है जो एड करता है किसी चीज को प्रूव करने के लिए, किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए, तब उसको बोला जाता है एविडेंस की प्रोबेटिव फोर्स। ये बात याद रखिएगा, उसको बोला जाता है इट इज द प्रोबेटिव फोर्स ऑफ द एविडेंस, ठीक है। When the particular evidence aids in proving the fact in the controversy, it is called its probative force. So what and how much proof is necessary to convince a judge as to existence or non-existence of the fact in issue would depend on myriad of circumstances and will be determined in accordance with the fact and circumstances of each case, and also in context whether the trial is a civil trial or a criminal trial, उस पर भी डिपेंड करता है। एक चीज़ जो सर्टेन है लेकिन उसका ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्या है कि सस्पिशन, मॉरल बिलीफ और प्रिजम्पशंस बाय इटसेल्फ, मतलब वो प्रिजम्पशंस नहीं जो लॉ बनाता है, वो प्रिजम्पशंस जो मान लीजिए जो जज का पर्सनल मॉरल बेस पे बेस्ड है, जिसमें कोर्ट को सस्पिशन लगने लगे या कोर्ट को इमेजिनरी डाउट इंटरटेन करने लगे या अपनी अनरियलिस्टिक हाइपोथेसिस बनाने लगे, तो वो सारी चीज़ें एविडेंस नहीं कहलाती, ठीक है, बाय इट सेल्फ एविडेंस नहीं कहलाती। दे शुड ग्रो आउट ऑफ एविडेंस इन द केस। सो यू शुड बी वेरी सर्टेन while writing the answer regarding the nature of the evidence that suspicion does not amount to proof. Suspicion कभी भी proof की कैटेगरी नहीं ले सकता, ठीक है, चाहे कुछ हो जाए। Suspicion is not a ground for proof or for establishing a case. Suspicion से investigation ज़रूर कर सकते हैं आप,
सस्पिशन से आप प्राइमा फेसी केस जरूर एस्टैब्लिश कर सकते हैं पर कन्विक्शन कभी नहीं करवा पाएंगे. सस्पिशन नेवर एवर अमाउंट्स टू प्रूफ, ये बात याद रखिएगा. सस्पिशन, इन्फेरेंसेस, they never amount to proof, and neither does the moral belief of the judge. ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा. देखिए सिविल केसेस की कभी कभी एक ख़ास बात होती है एविडेंस को लेने में कि विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज़ कुछ रूल्स ऑफ एविडेंस रिलैक्स किए जा सकते हैं और कोर्ट के ऑर्डर से कई फैक्ट्स पे एविडेंस एफिडेविट पे भी दिया जा सकता है. पर क्रिमिनल ट्रायल में जो प्रूफ है वो कभी रिलैक्स नहीं किया जाता. ठीक है, क्रिमिनल ट्रायल में कुछ जनरल रूल्स हैं एविडेंस के. क्या हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पर एक बार मैं फिर रीइटरेट कर देता हूँ आपके लिए कि अक्यूज्ड इज ऑलवेज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी बाय द प्रोसिक्यूशन. द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द प्रोसिक्यूशन इज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. ठीक है, फिर द एविडेंस मस्ट बी सच एज टू एक्सक्लूड एवरी रीजनेबल डाउट ऑफ द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड. देन इन केस ऑफ अ रीजनेबल डाउट एज टू द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड, the benefit of doubt should always be given to the accused person. In other words, कि अगर कोर्ट के दिमाग में डाउट है then it is safer to acquit than to convict. क्योंकि प्रिंसिपल याद रखिए, इंडिया में कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होता है कि it is better that 10 guilty persons should escape than one innocent be made guilty. ठीक है. Then fourth point is that there must be always be clear proof or corpus delicti, that is the fact of commission of the crime. ये जनरल रूल है, unless of course it falls into the exception जहाँ पे accused ने corpus delicti destroy कर दी है. And fifth is hypothesis of delinquency should be consistent with all the fact proof and form a chain of circumstances so complete to only point in one direction that the accused is guilty. अब ये मैं mix and match करके बता रहा हूँ, किसी केस लॉ के बेसिस पे नहीं बता रहा. That is summarization of the principles. और भी principles हैं, I have already discussed it yesterday, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एलैबोरेट नहीं कर रहा इस बात पे. आप पिछले 2 लेक्चर्स को सुन के उसे थोड़ा मेक आउट कर सकते हैं कि और कौन कौन से उसमें स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ हैं. अब ज़रा मैं एक लास्ट पॉइंट पे आ जाता हूँ जो है सेक्शन 273 का. अब सेक्शन 273 कहता है कि एविडेंस इज टू बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड. ठीक है, CRPC का सेक्शन 273 कहता है कि एविडेंस टू बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड. तो अनलेस जो सेक्शन है CRPC का, इट सेज दैट अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड ऑल द एविडेंस विच इज टेकन इन द कोर्स ऑफ ट्रायल or other proceeding shall be taken in the presence of the accused or if his personal attendance is dispensed with in the presence of his pleader. CRPC में एक एक्सेप्शन है कि accused की बैक पे भी एविडेंस लिया जाता है अगर केस 299 CRPC में फॉल करे. तो एविडेंस एक्ट के पर्सपेक्टिव से मैं बस एक बात डिस्कस करना चाहूँगा जो रेलेवेंट है आपके लिए एग्जाम के पर्पज से कि क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी एविडेंस रिकॉर्ड हो सकता है. क्या जो 273 ऑफ द CRPC में जो एविडेंस टू बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड है, क्या वो अक्यूज्ड की फिजिकल प्रेजेंस है या इसमें आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से भी एविडेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं. तो इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ल बी देसाई में दिया था और फिर उसमें कोर्ट ने कई जजमेंट्स कंसिडर किए और बोला लॉ कैन नॉट स्टैंड स्टिल और चेंजिंग सोशल कंसेप्ट, वैल्यूज़ और टेक्नोलॉजी के हिसाब से लॉ को इवॉल्व करना चाहिए. लॉ की ड्यूटी है टू ऑलवेज फाइंड द ट्रुथ और फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी का रोल है जज का. ये सारी चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज एन एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच परमिट्स वन टू सी, हेयर एंड टॉक्स विद समवन फार अवे with the same facility and ease as if he is present before you. So it is not a virtual reality, it is an actual reality. Thus video conferencing, both parties are in presence of each other, so that can be used for the purpose of recording evidence. ठीक है. अब एक और पॉइंट सुप्रीम कोर्ट इस केस में होल्ड करता है कि नॉर्मली व्हेन अ कमीशन इज इशूड बाय द कोर्ट फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस, the recording would have to be at the place where the witness is. But if the witness is outside India, then the arrangements are required between India and the country because the services of the official of the country, which is mostly a judicial officer, would be required to record the evidence and to ensure attendance. However, new advancement of science and technology would permit the official of the court in the city where video conferencing is to take place to record the evidence. Thus, where a witness is willing to give evidence, an official of the court can be deputed to record evidence on the commission by the way of
video conferencing. Next point that was held in this judgment was the evidence will be recorded in the studio or court where the video conferencing takes place. The judicial officer shall ensure that the respondent and his counsels are present when the evidence is being recorded. And the fourth point that was held, that it must be clarified that adopting such a procedure may be possible if the witness is outside India and not willing to give evidence. तो देखिए शॉर्ट में आपको क्या आंसर लेना है इस जजमेंट से कि यस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप एविडेंस ले सकते हैं एंड सेक्शन 273 विल नॉट कम इन इट्स वे. वो ऐसा ही माना जाएगा कि वो एक्चुअल रियलिटी है और विटनेस वहीं पे प्रेजेंट है और अक्यूज के सामने ही एविडेंस लिया जा रहा है. ठीक है. अब देखिए एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, एविडेंस एक्ट नहीं बताती है कि ये सिविल ट्रायल के लिए बर्डन ऑफ प्रूफ है, ये क्रिमिनल ट्रायल के लिए बर्डन ऑफ प्रूफ है. ये एविडेंस एक्ट ये नहीं बताएगी कि ये फैक्ट सिविल ट्रायल के लिए रेलेवेंट है, ये फैक्ट क्रिमिनल ट्रायल के लिए रेलेवेंट है. तो एविडेंस एक्ट बस एक नरेशन देता है जो दोनों सिविल और क्रिमिनल ट्रायल पे अप्लाई होता है. तो इसका मतलब ये है कि जो एविडेंस जो है क्रिमिनल मैटर्स में वो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से लिया जा सकता है. ठीक है. ये भी एक पॉइंट था जो उस जजमेंट में हेल्ड हुआ था फॉर द पर्पस ऑफ रीजनिंग. और सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस जजमेंट में स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ल बी देसाई में कि यस एविडेंस कैन बी रिकॉर्डेड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. ठीक है. आई डू बिलीव दैट दिस क्वेश्चन शुड बी एडिक्वेटली आंसर्ड. अब हम इंटरप्रिटेशन क्लॉज पे आगे चलते हैं, थोड़ा प्रूव्ड की डेफिनेशन पे आते हैं. A fact is said to be proved when after considering the matters before it, the court either believes it to be exist. तो कोर्ट वाला पॉइंट पहले मेंशन करिए, लोग भूल जाते हैं, लोग सीधे प्रूडेंट मैन लैटर पार्ट पे चले जाते हैं. तो मतलब प्रूव्ड का पहला क्राइटेरिया ये है कि जब कोर्ट सारा मैटर कंसिडर करता है तो कोर्ट को लगता है कि फैक्ट एग्जिस्ट करता है और कंसिडर्स हिज एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट द प्रूडेंट मैन ऑट अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ अ पर्टिकुलर केस टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट इज एग्जिस्ट. तो ये प्रूडेंट मैन की जो बात है वो सेकेंडरी है. पहली बात ये है कि अगर कोर्ट बिलीव करता है कि फैक्ट एग्जिस्ट देन इट एग्जिस्ट. और सेकेंड क्राइटेरिया ये है कि चलिए अगर कोर्ट बिलीव नहीं करता है पर अगर ये कंसिडर करता है कि उसका एग्जिस्टेंस इतना प्रोबेबल है कि एक प्रूडेंट मैन हु इज अ रीजनेबल मैन ऑट अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ अ पर्टिकुलर केस बिलीव दैट इट एग्जिस्ट, तो वो प्रूव्ड मान लिया जाएगा. अब डिसप्रूव्ड की क्या डेफिनेशन है? डिसप्रूव्ड की डेफिनेशन है कि a fact is said to be disproved when after considering the matters before it, the court either believes that it does not exist or considers its non-existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of a particular case, to act upon the supposition that it does not exist. तो ये ठीक proved का उल्टा है. proved में पॉजिटिवली बात की जा रही है, disproved में नेगेटिवली बात की जा रही है. disproved में नॉन एग्जिस्टेंस की बात है, proved में एग्जिस्टेंस की बात है. पर क्राइटेरिया दोनों का ही सेम है कि कौन कंसिडर करेगा प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड का फैक्ट. कोर्ट पहले, और फिर अगर एग्जिस्टेंस की बात है तो प्रूडेंट मैन का टेस्ट लगाएगा टू बिलीव दैट इट एग्जिस्ट, और अगर डिसप्रूव्ड की बात है तो प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूडेंट मैन का टेस्ट लगाएगा दैट अ पर्टिकुलर फैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है. लेकिन इन बोथ द सिनेरियोज द फर्स्ट क्राइटेरिया इज व्हाट, दैट कोर्ट बिलीव्स. ठीक है. कोर्ट का बिलीफ इज मोस्ट एसेंशियल. इनफैक्ट वी लॉयर्स ऑलवेज से दिस कि इट डज नॉट मैटर व्हाट एवरीवन एल्स बिलीव्स, ऑल दैट मैटर्स इज व्हाट द जजेस बिलीव. तो अब जज अगर कन्विंस हो गया देन इट डजंट मैटर दैट पर्सन ए बी और सी डजंट बिलीव अ पर्टिकुलर फैक्ट, बिकॉज द जज इज द क्राइटेरिया फॉर बोथ द प्रूडेंट मैन एंड बोथ फॉर इट सेल्फ. भाई जज ही तो है जो प्रूडेंट मैन का टेस्ट लगाता है. सिमिलरली जज ही वो अथॉरिटी है जो बताता है कि इन अ गिवन एक्ट द कोर्ट बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट. तो यहाँ पे भी जज का रोल बड़ा क्रूशियल हो जाता है, जज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो डेफिनेशन क्लॉज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रखना है? प्रूव्ड की डेफिनेशन याद रखिएगा और डिसप्रूव्ड की डेफिनेशन याद रखिएगा. अगर आपने किसी एक पॉइंट को पढ़ लिया तो दूसरा पॉइंट आप ऑटोमेटिकली पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड में जो डिफरेंस है वो सिर्फ इस बात का है कि प्रूव्ड में किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस की बात की जा रही है, डिसप्रूव्ड में नॉन एग्जिस्टेंस की बात की जा रही है. ठीक है. देन वी कम टू द थर्ड कैटेगरी, नॉट प्रूव्ड. नॉट प्रूव्ड का मतलब होता है अ फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड व्हेन इट इज नाइदर प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव्ड. ये याद रखिएगा. लोग अक्सर नॉट प्रूव्ड को डिसप्रूव्ड की कैटेगरी में मान लेते हैं. नॉट प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड
दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। नॉट प्रूव्ड का मतलब है कि कोई चीज़ ना साबित हुई है ना डिस्प्रूव हुई है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ज़रा प्रिजम्पशंस पे। अब पहला है मे प्रिज्यूम। अब इसको कहा जाता है रिबर्टेबल प्रिजम्पशंस, ठीक है। Wherever it is provided by this act that the court may presume a fact, it may either regard such fact as proved unless and until it is disproved or may call for proof of it. अब देखिए, may presume और shall presume दोनों ही रिबर्टेबल प्रिजम्पशन होते हैं। तो पहले हम लोग यही समझ लेते हैं कि may presume क्या है। may presume सिंपली ये है कि कोर्ट के पास डिस्क्रेशन है। जब भी एक्ट बोलती है कि द कोर्ट कैन प्रिज्यूम समथिंग, मे प्रिज्यूम समथिंग, तो कोर्ट चाहे तो उस फैक्ट को ऑलरेडी प्रूव्ड मान के चले until and unless it is disproved, और if the court wants तो प्रूव्ड मान के ना चले, it may called for a proof of it. Then similarly there is shall presume. अब shall presume legislative mandate है, जहाँ पे लेजिस्लेचर डायरेक्ट करता है कोर्ट को कि कोर्ट को ये प्रिजम्पशन करना ही होगा। अब यहाँ पे कोर्ट के पास डिस्क्रेशन नहीं है, कोर्ट विल गो इन अकॉर्डेंस विथ व्हाट द लेजिस्लेचर इज सेइंग। नाउ इन शैल प्रिजम्पशन द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट एंड रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अंटिल एंड अनलेस इट इज डिसप्रूव्ड। तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरी पार्टी पे है कि वो डिसप्रूव करे प्रिजम्पशन को। यहाँ पे कोर्ट मान के चलता है वो फैक्ट प्रूव हो चुका है जो भी लेजिस्लेचर मैंडेट कर रहा है कोर्ट को प्रिज्यूम करने के लिए। और थर्ड कैटेगरी है कंक्लूसिव प्रूफ। अब यहाँ पे लिखा है व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, द कोर्ट शैल ऑन प्रूफ ऑफ वन रिगार्ड द अदर एज प्रूव्ड एंड शैल नॉट अलाउ द एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पस ऑफ डिसप्रूविंग इट। अब देखिए, जैसे प्रिजम्पशन होते हैं ना, दे आर ओनली देयर टू रिलैक्स द बर्डन ऑफ प्रूफ। ये बर्डन ऑफ प्रूफ को रिलैक्स करने के लिए जनरली होते हैं। तो एक जो प्रिजम्पशन होता है एज अ रूल ऑफ लॉ, इट मीन्स दैट द कोर्ट्स एंड जजेस शैल ड्रॉ अ पर्टिकुलर इन्फेरेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर फैक्ट और फ्रॉम पर्टिकुलर एविडेंस अनलेस एंड until the truth of such an inference is disproved. A presumption could be the legal in regards to the legal matters or could be a factual assumption drawn from the existence of certain facts. ठीक है, they are raised in the terms of Evidence Act. So a court where it may presume a fact has a discretion to presume it as proved or to call for a confirmatory evidence of it as the circumstances require. In such a case, the presumption is not a hard and fast assumption incapable of rebuttal, because court has a discretion. But where the act is mandating that it is a conclusive proof, so conclusive proof is type of presumption that is called presumptio juris et de jure. ठीक है, ये conclusive proof का लैटिन है, और shall presume का लैटिन एक कहलाता है presumptio legis। ठीक है, अब एक थोड़ा एडवांस पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ पे कि मे प्रिज्यूम जो फैक्चुअल प्रिजम्पशंस होते हैं उसको कहते हैं प्रिजम्प्शियो होमिनिस। ठीक है, ज़्यादातर लोगों को ये बात पता नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपसे प्रिजम्प्शियो लेजिस को लेके ज़्यादा पूछा जाएगा, और ये पूछा जाएगा कि प्रिजम्प्शियो जोरिस एट द जोरिस कौन सा प्रिजम्पशन है, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम या कंक्लूसिव प्रूफ। आंसर है उसका कंक्लूसिव प्रूफ। ठीक है, अब आपको अगर कुछ प्रिजम्पशन ऑफ लॉ मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम देखना है तो सेक्शन 79 से सेक्शन 90 एंड सेक्शन 105, 113A और 113B उन पॉइंट से एसेट्रा डील करते हैं। ऑल ऑफ दीज आर रेबटेबल प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ। पर कंक्लूसिव या इररेबटेबल प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ कहाँ दिए गए हैं एविडेंस एक्ट में? सेक्शन 41, सेक्शन 112 एंड सेक्शन 113 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, ये इंडियन एविडेंस एक्ट में कंक्लूसिव प्रूफ की कैटेगरी में जाते हैं। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मे प्रिज्यूम को लेके जो सबसे पॉपुलर सेक्शन है वो होगा सेक्शन 114 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। उसमें काफ़ी नुआंसेस हैं। ठीक है, और ये जितने भी प्रिजम्पशन आप देख रहे हैं मे और शैल वाले, कंक्लूसिव को अभी हटा दीजिए, मे और शैल प्रिजम्पशंस जो हैं ये रिबटेबल होते हैं। बस ये है कि शैल प्रिज्यूम में जो प्रिजम्प्शियो जोरिस है उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ ऑपोजिट पार्टी पे होगा,
उसको डिस्प्रूव करने के लिए। मे प्रिज्यूम में कोर्ट के पास डिस्क्रेशन है कि हैविंग रिगार्ड टू ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ अफेयर्स और ह्यूमन कंडक्ट और ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शंस, कोर्ट चाहे तो कोई फैक्ट अज्यूम करके चले तो, और चाहे तो कोई फैक्ट अज्यूम करके ना चले। ये कोर्ट का डिस्क्रेशन है मे प्रिज्यूम में। सो ऑलवेज रिमेंबर, presumption of facts or natural presumptions are inferences which are naturally and logically drawn from the experience and observation of the course of nature, the constitution of the human mind, and the springs of human action and the usages of the habits in the society. While the presumptions of law are based, like presumptions of fact, on the uniformity of the deduction which the experience proves to be justifiable, they may differ in being vested by the law with the quality of a rule which directs that they must be drawn and they are not permissive like natural presumptions. ठीक है, यहाँ पे legislature mandate करता है, presumptions of law में legislature mandates it that you have to presume it. ठीक है, so presumptions of law are based on the uniformity of the deduction which the experience proves to be justifiable. So they differ in being vested by law with the quality of a rule which directs that they must be drawn. They are not permissive like natural presumptions. वो may presume की तरह permissive नहीं होते कि कोर्ट के पास डिस्कशन है। shall presume में कोर्ट के ऊपर ड्यूटी बनती है कि उसे मानना ही होगा, तभी shall वर्ड का यूज है। इट मीन्स इट्स ऑफ मैंडेटरी नेचर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, बोथ presumptio juris and presumptio hominis, that is may presume और शैल प्रिज्यूम, ये दोनों ही रिबटेबल हैं, इनको रिबट किया जा सकता है। लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ इज इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। एक बार कोर्ट ने बोल दिया कंक्लूसिव प्रूफ है, देन यू कैन नॉट रिबट इट, आप रिबट नहीं कर सकते। ठीक है, 3 इंस्टेंसेस ऑफ कंक्लूसिव प्रूफ क्या हैं? सेक्शन 41, सेक्शन 112 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 113 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। थोड़ा उसके बाहर से भी आपको थोड़ा बता देता हूँ कि जो मैरिज सर्टिफिकेट है ना, जो इशू किया जाता है स्पेशल मैरिज एक्ट में, वो भी कंक्लूसिव प्रूफ होता है फॉर द सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज अंडर द एक्ट। वैसे ही सेक्शन 82 ऑफ द CRPC में जहाँ पे प्रोक्लेमेशन दिया जाता है फॉर द पर्सन एब्सकॉन्डिंग, वहाँ पे अगर कोर्ट ने एक स्टेटमेंट इन राइटिंग में लिख दिया इशूइंग प्रोक्लेमेशन टू द इफेक्ट दैट द प्रोक्लेमेशन वाज ड्यूली पब्लिश्ड ऑन अ स्पेसिफिक डेट, वो भी कंक्लूसिव एविडेंस मान लिया जाता है। और देखिए, लॉ में कंक्लूसिव एविडेंस और कंक्लूसिव प्रूफ में कोई डिफरेंस है नहीं। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा, जो कंक्लूसिव प्रूफ है दैट इज इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और प्रिजम्प्शन जुरिस एट दे ज्यूरे, which means they are conclusive presumptions of law which cannot be rebutted by any amount of evidence. ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जब भी कंक्लूसिव प्रूफ पे एक शॉर्ट नोट आए तो आपको मेंशन करना है इसका लैटिन क्या है, एंड देन यू नीड टू राइट अबाउट इट, और एविडेंस एक्ट में कहाँ कहाँ है, और चाहे तो एविडेंस एक्ट के बाहर के भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ऐसे आपको ज़्यादा ही नंबर मिलेंगे बाकियों से। ठीक है, सो आई थिंक दैट वुड सफाइस फॉर टुडे। कल से हम लोग रेलेवेंसी ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट शुरू करेंगे। ठीक है, रेलेवेंसी का चैप्टर शुरू हो जाएगा, सारे प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट्स खत्म हो चुके हैं अब। ठीक है, दैट इज़ इट फॉर टुडे।